Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sonam. Dosto, today Marathi cinema is known for its originality, its powerful storytelling, narrating heartwarming, heart-touching stories, and of course providing wholesome family entertainment with Paisa Vasool experience. And you get all these elements in Baipan Bhari Deva, a movie that has been smashing box office records and creating new history with every passing day. It's 50 crore plus, aiming for 100 crores. Many congratulations. I have the superstar female leads with me today, along with the superstar director Kedarji, and let me introduce Shilpaji, Vandana ma'am, Rohini ma'am, and of course Suchitra ji. Of course, I know I loved your film. सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. हाल ही में मैं हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फिल्म देखने गया था. टाउटर इज द बिगेस्ट मूवी स्टारिंग द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द प्लैनेट. दैट मूवी वाज रनिंग, जो भी था, हाउसफुल था या जो भी था, बट जितना शोज वो मूवी का था उतना शोज आपके फिल्म को था, एंड योर फिल्म वाज एब्सोल्युटली रनिंग No, हाउसफुल. actually, we have more shows than the film you are talking More about shows, because we know absolutely. which film you are talking about. So it's a mission possible, absolutely possible for your film. Ma'am, I will start with the senior most legends of our cinema. Vanna ma'am, Rohini ma'am, you've been part of such iconic films. What does the success of Baipan Bhari Deva mean to you personally, as well as to Marathi cinema? It means huge personally for me because after nearly 45 years of my career, I'm um, I'm experiencing this figures like in crores first time. I don't think even in Gandhi also I never thought about it. और अभी ये जो हो रहा है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है मेरे लिए, कम से कम, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस. ओके, वंदना मैम. मैंने आज तक जो भी किया 50 साल तो मैं थिएटर में करती आई. जो भी चुन चुन के की मैंने फिल्म्स, बहुत आई वाज वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट कोई भी फिल्म करनी है तो, फिल्म या सीरियल हो या नाटक हो, जो भी है, तो एक ऑडियंस का ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है कि वंदना है तो अच्छी होगी. और जब केदार भी यही फिल्में करता है तो वो है तो अच्छी होगी. रोहिणी इज ऑलवेज देयर, अच्छी ही होगी. इसने तो 5 तुम तो क्या होता सीरियल, हम 5 से ये कर रही है और ये तो लिखती आ रही है कब से. करेक्ट. सो द कॉम्बिनेशन इज सच अ गुड कॉम्बिनेशन. तो ये तो होना ही था. हाँ, मगर इतना नहीं था. हम लोगों को अगर पहले पता होता तो हम अपनी फी बढ़ा के ही बताते. तो मजा आया करने में. एक्सपीरियंस से कुछ कोई कह नहीं सकता. नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ये सक्सेस मिलने वाला है. मगर जो हो रहा है वो हमारे लिए बूस्टिंग एकदम टोटली. एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ आई एम गेटिंग दिस रिस्पॉन्स फॉर अ फिल्म is very very exhilarating. But let me tell you, along with the beautiful performances, all of you look so beautiful on screen. We are Absolutely. I mean, the way you are presented. That was absolutely nice to watch. Shilpa ma'am, were you absolutely sold about this idea when Kedar sir narrated it to you? Was it an instant yes? Yes, absolutely. Because firstly, it was Kedar Shinde asking me for a film, Right. so there was no question of saying no. Secondly, the script was so beautiful. It was simple, sweet, and very, very relatable. So there was no question of saying no. Also, an added bonus was that I would be getting to work with 5 of these women, 2 of whom are very old friends, and the others are very senior. And my instant response was yes, of course I'm going to do this. राइट. केदार सर, स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिला था महाराष्ट्र शहर के अंत में भी. वो फिल्म भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी. एंड इवन दिस फिल्म, इट गॉट अ लॉट ऑफ अप्लॉज, इट गॉट अ लॉट ऑफ विसल्स एंड स्टैंडिंग ओवेशन एज वेल. आदत बनते जा रहा है आपको अब. स्टैंडिंग ओवेशन नहीं होता है, स्टैंडिंग डांस होता है. नहीं, आदत की ऐसे कुछ कोई सोच नहीं है आदत की. वी शुड हैव, वी मस्ट कीप वर्किंग. ये कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है कि ये अभी ये 20 ग्राम ये डालो, 30 ग्राम ये डालो तो ये परिणाम उसका आना है. मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ पर. इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ. मैं फर्स्ट फिल्म वॉज अगवैया रिक्शा, दैट वाज आल्सो सुपर डुपर हिट. माय सेकंड फिल्म वॉज जतरा. उसके बाद मैंने जो फिल्में की है, कुछ अच्छी लगी लोगों को, कुछ पसंद नहीं आई, कुछ ठीक ठाक लगी, कुछ अच्छी भी नहीं लगी. ये भी हो सकता है. मैं हमेशा मेरे काम को ना, मेरी माँ के जो घर पे वो बनाती है
हमारे मराठी में बोलते हैं वरण, दाल दाल। तो वो मैं सोचता हूँ कि माँ आज बहुत अच्छी दाल बनाती है, सेकेंड डे हम लोग बोलते हैं कि नहीं कल वाली अच्छी थी यार, आज थोड़ा, माँ माँ होती है, वो सेम दाल बनाती है, लेकिन वो हमें है कि हमें क्या खाना है और हमें क्या अच्छा लग रहा है, वो ऑडियंस है। वी आर जस्ट मेकर्स, वी आर क्रिएटिव पीपल, और उनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हम लोग काम नहीं कर सकते। महाराष्ट्र शहर अच्छी चली, बाईपन अच्छी चली, अभी मेरे को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर मोर। लेकिन एक है कि महाराष्ट्र शाहिर वॉज अ बेस एंड नाउ बाईपन इज पिलर्स। क्या सो बात है, मेरा बेस बहुत ही स्ट्रांग है। राइट। सो आई एम जस्ट नॉट वरीड अबाउट माई बेस, बिकॉज वो फिल्म देखने के बाद नजरिया बदल गया था मुझे देखने का, बिकॉज आई वॉज ए वेरी, अरे केदार शिंदे कॉमेडी बनेगा, ऐसा ही अच्छा, था। ये था मतलब परसेप्शन। या बिकॉज आई हैव, नाटक भी बहुत हाँ। ही yeah, I love comedies, I make comedies, नाटक करता हूँ मैं, सीरियल करता हूँ मैं, फिल्में भी मैंने कॉमेडी की है, लेकिन कुछ हटके अच्छा कंटेंट मेरे सामने आए तो मैं कर सकता हूँ, ये कंफर्म हुआ महाराष्ट्र शाहिर की वजह से। एंड बाईपन ने तो फिर इन्हें 6 बार आग लगा दी। मार डाला। So you realize the base is there, the pillars are there, but the Right. peak is yet to come. Okay. So it's going to come. Everest is set to be Yes. touched. Okay. Suchitra ma'am, what kind of homework did you put in to prepare for your character? कैसे किया आपने? वो जो natural effortless अंदाज आप लाती है स्क्रीन पर, वही वो कहाँ से- नेचुरल एफर्टलेस अंदाज ही, बाकी कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये इतना बढ़िया है हमारा डायरेक्टर, और स्क्रिप्ट अच्छी थी। यस, लाइंस बाय हार्ट करके गई थी, ऐसे नहीं हो के सीन चल रहा है और मुझे लाइंस ही नहीं आ रही है, बस उतना ही प्रेपरेशन किया था। बाकी सब एक्ट्रेस गिव एंड टेक से ही सब सीन्स बने हैं, नथिंग एल्स। रोहिणी मैम, हाँ सॉरी, सिंपलिसिटी जो है ना, हाँ सिंप्लिसिटी, और जो सहज शैली में जो हम लोग पेश करते हैं ना, दैट गोज टू द हार्ट ऑफ द मैन। करेक्ट, हाँ, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा भी बढ़ा चढ़ा के बनाते तो कोई ऐसी फिल्म बन जाती, मगर रियल लगने के लिए देयर इज नो फैंटेसी, एब्सोल्युटली इतना सिंपल काम करना, प्रोजेक्ट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू द एक्टर। और वही जम गया, इसलिए अच्छी फिल्म वेरी बनी ट्रू। है। अगर पता होता कि ये फिल्म इतनी हिट होने वाली है तो थोड़ा सा होमवर्क करके आते। थोड़ा सा मैं सोचती कि हाँ मैंने ये किया, मैंने अपने रोल के लिए ये किया, पर एक्चुअली कुछ नहीं किया है तो कुछ बोल ही नहीं सकती। पर अगर पता होता कि ये फिल्म इतने करोड़ों कमाएगी तो हम लोग कुछ ना कुछ सोच कर आते हैं ना, करते। हाँ, तो वो वर्क नहीं होता, बहुत सोचा होता तो वर्क नहीं होता। एक तो हम सब लोगों ने अपनी कैरेक्टर्स दिमाग में रखी थी, और जो डायलॉग्स थे, जो सीन्स थे, वो इकट्ठा करते वक्त जो हमको लगा वही हमने किया। किसी ने ऐसे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कुछ नहीं किया है, शायद इसीलिए वो ज़्यादा टच करती है कि ये ड्रामेटिक नहीं है। करेक्ट, किसी ने ड्रामा करने की कोशिश नहीं की है। करेक्ट, ये जो रोई है वो भी ड्रामा के लिए नहीं रोई है, शी फेल्ट इट एंड देन शी कोलैप्स्ड, एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बिलीवेबल होता है, और बिलीवेबल जब होता है तो कहीं हार्ट टचिंग होता है। मैम, दैट सिमरिंग टेंशन बिटवीन यू टू, वो जो अनबन होता है, वो कैसे आप लोग लाए स्क्रीन पर? यू सीम टू बी great friends off screen. Yeah, otherwise Or not, we I are, don't know. no, we are Great actors, absolutely. क्या है, थिएटर की वजह से ना आंखों में कभी ग्लिसरीन नहीं डाला। क्या वो जो बात है। स्पॉन्टिनिटी आती है ना, यहाँ से काम करते हैं हम। यहाँ माइक है इसलिए यहाँ से नहीं काम करते, यहाँ से करते हैं। जब यहाँ से करते हैं ना तो कलेजे में तो जाएगा ही ना। तो मेरे और इसके बारे में जो रिफ्ट है वो दिखाने के लिए दिस सीन वेयर इनफ, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। उसके मैं घर जाती हूँ और रो पड़ती हूँ जब मुझे एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत काम किया था, मैंने कुछ गलत सोचा था इसके बारे में, वो जब रियलाइज़ होता है। और जो मेरी बेटी के साथ की मेरी रिलेशंस है, वो बेटी कहती है कि तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं हार गई इसमें, तुमने कभी सोचा कि मैं कैसी हूँ, जो हॉस्पिटल से जब वो आती है तो। एंड आई रियलाइज कि हाँ सच्ची, तो ये रियलाइजिंग का हर एक की लाइफ में आ ही जाता है कभी ना कभी सिचुएशन। और तब मैं हार के चली जाती हूँ कि ओके टेक केयर, आई हैव टू एक्सेप्ट समटाइम्स कि
एक रात में सब सारे रिश्ते बदल जाते हैं कि लड़की घर में जाती है दूसरे घर और उनको अपना बना लेती है और अपने को भूल जाती, भूलती नहीं है वो, मगर वो उसके मन में बैठा है कि उसको भी मम्मी बोल रही हो, मैं मम्मी हूँ। तो वो मेरा स्ट्रगल चल रहा है, इसीलिए मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि अभी मंगलागौर की सिचुएशन है, मंगलागौर की कॉम्पिटिशन में, तो इसके लिए सबको इकट्ठा करूँ और कुछ करूँ। तो वो दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द माय कैरेक्टर। करेक्ट करेक्ट और वो रिफ्ट लाने के लिए इनको भी रोने की जरूरत नहीं थी, मुझे हाँ। भी, वो सारा अभी Naturally आ इतने जाता साल से आ रहा है। Kedar sir, touching sensitive topics like menopause and directing it so sensitively, how did you bring that? आई विल गिव फुल मार्क्स टू माई राइटर वैशाली नाइक, Hmm. जिसने बहुत प्यारा लिखा, सोच अच्छी है। एंड माई एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर माई ब्रदर ओमकार मंगेश, हम तीनों ने बैठ के बहुत सी चीज़ें जो चाहिए वो वैसे ही क्राफ्ट की। 100% अगर हम लोग किसने कितना काम किया है अगर ये सोचे तो वैशाली, यानी वो आइडिया लेके ही मेरे पास आई कि ये 6 औरतें, वो जो 6 बहनें हैं, वो एक कंपटीशन की वजह से एक साथ आती है जिनका एक दूसरे के साथ बिल्कुल पटता नहीं है। दैट ट्रिगर्ड मी, यानी ये परफेक्ट है। दूसरी बात, हम लोग ने ये तय किया था कोई भी जो एक लेडी इशू है उसको प्रीची नहीं बनाते। इट शुड बी, हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन आपको जो समझना है वो समझ लो यार। हम लोग आपको सिखाने नहीं आए हैं, ये फिल्म सिखाती नहीं है, ये आपको एहसास दिलाती है कि क्या क्या करना है और किस वक्त क्या करना है। तो ये एहसास दिलाने की कोशिश राइटर और डायरेक्टर टीम की थी और वो अभी सक्सेसफुल हुई है। परसों आई वॉज देयर इन सन सिटी पार्ला, तो शो ख़त्म होने के बाद हम लोग मिलते भी हैं। उस दिन ये लोग मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला था, एंड जियो के निखिल साने वॉज विद मी। तो निखिल ने मुझे कहा कि तू जाके बात कर, लोगों को कैसे लगी ये फिल्म। सो इमीडिएटली ना एक पूरा गुजराती एक क्राउड मेरे सामने आया और उनको मैंने कहा कि आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो मेरी ऐसे बहुत आंखों में पानी था उनके, शायद वो रोई थी, बहुत बहुत प्रेज किया, फोटोग्राफ्स निकाले, सेल्फी हो गया, ये सब कुछ हो गया। और जाते जाते मुझको ऐसे पूछा कि बाय द वे व्हाट इज योर नेम। सो मुझे लगता है ये काम उन तक पहुंचा है और दैट इज इम्पोर्टेंट। Absolutely. सो केदार शिंदे पहुंचना जरूरी नहीं है, वो काम पहुंचना जरूरी है और वो बरकरार रहेगा। सर, जाने से पहले रीमेक के ऑफर्स आए ऑलरेडी बॉलीवुड से या होने वाला है नहीं, कुछ? एक तो क्या है कि ये तो जियो ही तय करेगा और मुझे ऐसे लगता है कि जियो ने ये सिर्फ सोचना चाहिए कि अगर कोई भी रिमेक करे तो मुझे ही ले। ये वैसे नहीं होने वाला, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट कि मैं 6 औरतों को संभाल सकता हूँ। क्या बात है सर। सभी लोग जाने से पहले मेरे जो व्यूवर्स है मिक्स है, महाराष्ट्रियंस भी है, ऑल ओवर इंडिया भी है, फिर यूएसए वगैरह भी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सुचित्रा मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आपने ये बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प इंटरव्यू, थैंक यू मैम। सो थैंक यू फॉर दैट कि आपको समझ है किस तरह से लोगों के साथ, लोगों के सामने पेश होना चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, Thank you, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके व्यूअर्स क्या, आप वो तो हमारे भी व्यूअर्स है, सो हम उन्हें यही कहेंगे कि प्लीज वॉच बाईपन भारी देवा, और इनका भी ब्लॉग आप या फिर वो जो वीडियोस है वो प्लीज देखिए। थैंक यू मैम। रोहिणी मैम। मैंने काफ़ी भाषाओं में काम किया है, सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी काम किया है। लैंग्वेज इज़ नो बैरियर फॉर एनी कलाकृति, और हमारी फिल्म भी ऐसी ही है। यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज, यू कैन फील अस, सो प्लीज़ वॉच द फिल्म। केदार सर। मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये प्रतिनिधित्व करती है पूरे भारत का ये फिल्म। जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे सामने गुजराती ऑडियंस भी आ रही है एंड साउथ इंडियन ऑडियंस भी आ रही है, ये कर रही है फिल्म। सो होपफुली अभी लोगों की फिल्म बनी है, हमारी फिल्म नहीं रही है, ये ऑडियंस की फिल्म है। सो अभी उन्होंने तय करना है कि क्या करना है इस फिल्म का। थैंक यू सर। वंदना मैम। यही कहूँगी कि इट्स अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, और हर लेडी को, हर मेल को भी
कोई पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, सैंडपेपर हो, कुछ भी हो, सबको एक साथ लेके जाने वाली फिल्म है। क्या बात, और आप भी सबको साथ लेके जाइए और ये फिल्म देखते रहना। इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग, और आपको बहुत आनंद देगी। सही बात है। शिल्पा मैम, Like Suchitra, I would like to say that this was a very different and nice interview. थैंक यू मैम। And I think the base lies in the fact that you said you watch all films Yeah, I do. before talking to the team or even otherwise. So I think that being an informed interviewer reaches your audiences. And to the audiences, I would like to say that this film is going to be like a picnic. So plan a single day picnic where you go somewhere in a group, and then you have fun. Somebody dances, somebody trips and falls, gets hurt, cries a bit, again goes and hugs somebody. And at the end of the day, when you come back home from that picnic, you remember that day all your life. So this film is going to be like that. Just go and enjoy it. Thank you very much, all of you, and congratulations, and all the best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you.